students, today we will see multiplication of vectors. How to multiply vectors? One is a vector multiplied by a scalar. A scalar. This is first one. Second one, vector multiplied by vector will become a scalar. Third one, vector multiplied by vector becomes a vector. Of course, a vector multiplied by a scalar will become definitely a vector only. Three things. First one is very simple. सबसे सिंपल है. There is a vector like this. Let's say 3 Newton. This vector name is A vector. 3 Newton. I want 3A vector. I am multiplying by a scalar of this vector. A vector हमको मिला इतना. अभी हमको इसका 3 टाइम्स चाहिए. क्या करना पड़ेगा? सबसे सिंपल है. डायरेक्शन तो सेम आएगा. दिस ऑल्सो वेक्टर 3 टाइम्स ए वेक्टर. मतलब सेम डायरेक्शन में अगर ये 3 होगा, 3 into 3 कितना आएगा? 9 न्यूटन रिप्रेजेंट करेगा. ये डायरेक्शन सेम रहेगा. 3 times 3 equal 9. Suppose I want to get vector minus 2a. So I want to multiply this vector by minus 2. ये वेक्टर A का डायरेक्शन A है, माइनस वेक्टर बोले ऑपोजिट डायरेक्शन में. A वेक्टर ऐसा है, माइनस 2A वेक्टर ऐसा रहेगा. अगर ये 3 है तो 6 न्यूटन, इसका डबल रहेगा. माइनस 2A माइनस रिप्रेजेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, डबल ऑफ दैट माइनस 2A. Now there is a vector here, B vector. It is like this. 4 Newton in this direction or some other direction. ऐसा. This is B vector. 4 Newton नहीं है, वो 3 है, 2 Newton करेंगे. हम लोग एक काम करेंगे, माइनस 3b कैसा आएगा? ए 2 न्यूटन ऐसा डायरेक्शन में, माइनस 3b विल बी द ऑपोजिट डायरेक्शन. इसका 3 टाइम्स, दैट इज 6 न्यूटन in the opposite direction. This is direction of b, this is the direction of minus b. माइनस 3b है, मतलब इसका 3 टाइम्स. ये 2 है, 2 into 3 is 6. This how we represent vectors in the opposite direction. This is a scalar multiplication of vector by a scalar. Vector multiplied by a scalar. A vector A 3 Newton. A vector is multiplied by a scalar. उसको 3 से मल्टीप्लाई किया. So और माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया. वेक्टर A को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसा आ गया. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ऐसा गया. 3 into 3 9. Very very simple. I am multiplying a vector by a scalar. 3 is a scalar, 3 से multiply किया, 3 into 3 Newton is 9 Newton. Very simple. This is multiplying a vector by a scalar. Scalar मतलब number.
So it is again a vector. 3 Newton into 3, 9 Newton in this direction. So this is also vector. A vector multiplied by scalar will become a vector. Now this is very simple. Everybody knows. Now next is the second one. Vector multiplied by vector. This is very important for 11th standard, 12th standard, JEE, NEET, everywhere. They will ask you questions on this. Sums will be asked on this. So understand it properly. So ये द्वारा पूरा निकाल देते हैं. अभी now we are taking vector multiple of vector equal to scalar. उसको बोलते हैं scalar multiple of vector. उसको बोलता है scalar multiple of vector. उसका रिजल्ट क्या आएगा? मल्टीप्लाई करने के बाद वो स्केलर हो जाएगा. भाई दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेगा, फाइनली इट बिकम्स ए स्केलर. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर्स. इसके बाद में ये चालू करेगा. आज हो सकता तो करेगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा वेक्टर मल्टीपल ऑफ वेक्टर. आज का लेक्चर में कंप्लीट करेगा, कोई भी इसका सम्स भी करेगा, कोई भी करेगा. राइट. नाउ there is a vector here A with a magnitude this much. There is a vector here B like this, B vector. This is the angle between the two vectors. Theta is the angle between the two. हमेशा तुम लोग को छोटा एंगल लेना. ये एंगल इससे एंगल नहीं है, इस एंगल लेगा तो गलत हो जाएगा. छोटा एंगल लेगा. इसका टेन वेक्टर ए का टेन, वेक्टर बी का टेन, उसके बीच में जो एंगल है, कभी कभी है ना ये एंगल बी एंड ए का एंगल बिटवीन द टेन एंड टेन, ये ए. नाउ राइट, स्केलर प्रोडक्ट, इसको और एक नाम है स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर. स्केलर मल्टीपल वेक्टर हो गया ना. अभी क्या लिखा है? वेक्टर मल्टीपल बाय वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर मल्टीपल नहीं, स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. अभी हम लोग दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अभी स्केलर से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एक वेक्टर मल्टीप्लाई बाय दूसरा वेक्टर. वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी. अभी इसके स्केलर कोई इधर भी नहीं है, लेकिन इसका आंसर आएगा स्केलर. वेक्टर इंटू वेक्टर बिकम द स्केलर. दिस इज नॉट स्केलर मल्टीपल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीपल नहीं होती. इसको और एक नाम दिया है डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट लिखता है ए डॉट बी, ऐसा है. A डॉट बी मतलब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. एंड फाइनल आंसर आ गया, आएगा स्केलर. हम लोग पहले इसके पहले किया, ये वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर, फाइनली आंसर वेक्टर ही आ गया. अभी ये नहीं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, दोनों वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, फाइनल आंसर आएगा स्केलर. ए डॉट बी लिखता है इसको डॉट प्रोडक्ट भी होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट होने का कंफ्यूजन ही नहीं है. ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा. दिस इज द फॉर्मूला. सब लोग लिख के ले लो. ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ये डायग्राम बनाओ और लिख के ले लो. नोटबुक निकालो. नाउ ए into B cos A. A का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A. कभी कभी हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ A को ऐसा भी लिख सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ B को ऐसा लिख सकते हैं. ये भी सही है. सिर्फ A लिखेगा, A का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A, और ये मोड में डाल के लिखेगा तो भी मैग्नीट्यूड है. ओनली पॉजिटिव वैल्यू इज टेकन. पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेक्टर A, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेक्टर B.
A into B into cos theta. Theta is angle between this. A, B. This is A dot B. Suppose there is a vector here P equal to 5 Newton. There is a vector here Q is equal to 5 meter. Displacement. This is the force, this is the displacement. Now this is the angle theta. Theta equal to 60 degrees. Now P dot Q equal to PQ cos theta. Magnitude of P कितना है 5 न्यूटन into magnitude of Q वो भी 5 न्यूटन 5 मीटर. अच्छा ठीक है. और चेंज करना तो हम चेंज करेंगे. मैग्नीट्यूड ऑफ Q 4 मीटर. डिस्प्लेसमेंट P is the force vector, magnitude 5 Newton. Q is the displacement vector, magnitude 4 meter. Angle between the two vectors is 60 degrees. I don't want to get dot product. Dot product P dot Q equal to PQ into cos theta equal to P कितना है 5, Q कितना है 4 into cos theta. cos 60 कितना है सबको मालूम है. 10th स्टैंडर्ड में भी किया है, 9th में भी किया है. cos 60 equal to half. Now कट करके equal to 10. This is force into displacement. फॉर्मूला है 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है. P is the force into displacement equal to work done. Work is equal to force into displacement. So this is 10 is a work done. What is the unit of work? Varun, what is the unit of work? नहीं आ रहा है. 10 बहुत पहले किया है 10th स्टैंडर्ड. अभी तो तुमको नीट वगैरह लिखना है, लेकिन अभी नीट लिखना है तो 10th स्टैंडर्ड में जो किया वो भी आएगा. तो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स. सो मेनी जूल्स ऑफ वर्क. यूनिट ऑफ वर्क इज जूल्स. ये 10th स्टैंडर्ड में किया है, पर मुझे मालूम है. सो P dot Q. P is the force by Newton and Q is the displacement 4 meter. Force into displacement is work. वो 9th में भी किया, 10th में भी किया. अभी by the grace of God ऐसा सम्स आ सकता है 11th में भी 12th में भी. So answer is 12. 10 Newton. So this is one vector. Force is a vector. Displacement is another vector. This is one vector. This is another vector. Finally 10 joules. Work is not a vector. Work is a scalar. Work is, this is vector multiplied by vector gives you scalar. Force is a vector, displacement is a vector, work is a scalar. So vector into vector is a scalar. Vector multiplication by vector becomes a scalar. Yes. This is used to calculate force. This is application of vectors. Now, the dot product of vectors. Now let us go by the use of IJK vectors. A force, what is that? P is a force. Let us say 3I is another sum. 3I cap minus 2j cap plus 4k cap. Now I don't know how many of you know that how to find the magnitude of this. I said once, but you don't remember now, maybe. So I will tell you again how to get the magnitude of P. Magnitude of P is equal to square root of I का कोएफिशिएंट कितना है 3.
तो 3 स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना है -2, 2 नहीं है -2 है, -2 स्क्वायर प्लस ये कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 16 equal to square root of 29. Newton is the magnitude of this force vector. Magnitude ढूंढने के लिए बहुत सिंपल है, I का कोएफिशिएंट लेने का 3 स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, -2 का स्क्वायर भी प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, total is 29. 29 Newton, root of 29 is the magnitude of P. And there is another vector Q here. Displacement vector is, let us say 2i plus 4j. अरे के किधर गया इसमें? के गायब है ना के? ढूंढ के देखता है, अरे के किधर है? नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? सम रॉन्ग है, सम रॉन्ग नहीं है, के 0 के समझने का, लिखने का जरूर नहीं है, तुम्हारा माइंड में होना चाहिए के का कोएफिशिएंट 0 है। सो वेक्टर q का मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर j का कोएफिशिएंट प्लस 0 स्क्वायर। 0 स्क्वायर लिखने का जरूर है क्या? 0 स्क्वायर 0 ही होता है, तो नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus 16, this is square root of 20. Displacement, what is the unit of displacement? In my first lecture I told displacement, distance, दोनों का यूनिट है मीटर। कितना डिस्टेंस गया, कितना डिस्प्लेसमेंट गया। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो पहला लेक्चर में मैंने बताया। सो क्यूब का मैग्नीट्यूड मिल गया। सपोज theta equal to for our easy purpose 60 डिग्री लिया, तुमको दूसरा कुछ एंगल लेना है 30 डिग्री लेना, 30 डिग्री लो, और ओके जो एंगल लेना है ले 30 डिग्री, ठीक है फाइन। नाउ a डॉट b हमारे पास फॉर्मूला है, a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा। नाउ हमको cos थीटा ढूंढना है, एंगल नहीं दिया, a इज इक्वल टू एंगल नहीं दिया, a वेक्टर दिया है ना, इधर a के बदले p वेक्टर दिया है, सो p डॉट q इज इक्वल टू pq cos थीटा। ये देखो a डॉट b इक्वल टू ab cos थीटा, P डॉट Q इक्वल टू PQ cos थीटा। हमको P दिया है, Q दिया है, उसका मैग्नीट्यूड हम ढूंढना, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ P इज P, मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज Q। मैग्नीट्यूड हमको ढूंढा ऑलरेडी, मैग्नीट्यूड ऑफ Q इज √20, मैग्नीट्यूड ऑफ P इज √29। P डॉट Q कैसे ढूंढेंगे? P डॉट Q मल्टीप्लाई करने के लिए मेथड बताता हूँ। ये लिख के ले लो जल्दी, नोटबुक और पेन लेके लिख के ले लो। राइट, मैं इधर से ये निकाल देता है, थोड़ा सा इधर लिखता है। फाइन, a डॉट b कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? i j के आ गया तो a डॉट b। नाउ मल्टीप्लाई कैसा करता है? देखो i j के आएगा तो कैसा मल्टीप्लाई होता है? हम ड्रॉ करके मैं बोला इधर a है 3a बोला तो इसको मल्टीप्लाई करके इतना बड़ा होगा। ये फिगर वगैरह नहीं दिया, इसके बजाय a दिया है, a i j के में दिया है, और b q भी i j के में दिया है। नाउ राइट, और राइट, a डॉट b हमको ढूंढना है, सीधा I into I, 3 into 2 plus minus 2 into 4,
3 into 2 कितना आता है? 6 आता है। -8 equal to -2. So a dot b equal to -2. इससे स्केलर आंसर आ गया। a dot b का आंसर आ गया -2. -2 का आंसर। क्या किया हम लोग? इधर i का कोएफिशिएंट 3 है, 3 into 2, इधर का i q है, p dot q है 3 into 2 प्लस j का कोएफिशिएंट -2 है, j का कोएफिशिएंट 4 है, -2 into 4 -8, सब ऐड करना। और इधर 4 into, इधर k का कोएफिशिएंट क्या है? k का कोएफिशिएंट 0, कुछ मेंशन नहीं किया तो 0 है। 4 into 0 0, इसलिए आपको कंसिडर ही नहीं किया। अभी -2. Now we have a dot b equal to ab cos theta, therefore p dot q equal to pq cos theta, therefore cos theta from here, cos theta equal to p dot q upon p into q, magnitude of p into magnitude of q. अभी इधर p dot q हमने को मिला, p dot q मिला ना हमने को, a dot q b हमको मिला -2, इधर p dot q होना चाहिए p dot q, because vector is p, this vector is q, a नहीं है उधर, p dot q is equal to -2. अभी हमारा इस फॉर्मूला के cos theta equal to angle between vector p and vector q, cos theta equal to p dot q upon pq. हम लोग को p dot q मिला है, cos theta is equal to p dot q कितना मिला? -2 upon magnitude of a, magnitude of p, magnitude of p किधर है? root of 29 into magnitude of q, magnitude of q मिला हमको root of 20, yes, root of 29 into root of 20. cos theta मिला। cos theta ढूंढने के लिए बहुत इजी है। cos theta मिलेगा तो तुमको मालूम है, तुम्हारा टेबल cosine टेबल में देखेगा तो हमको थीटा मिलेगा, cosine टेबल से थीटा मिलेगा। तो थीटा ढूंढने के लिए यही मेथड है। we'll do some sums on this. ऐसा वाला सम्स आता है JEE में और नीट में और 11th स्टैंडर्ड में भी, इस साल भी तुमको आ सकता है। तो show you understand the method of finding theta between two vectors. First क्या किया हम लोग? वेक्टर p ये है, वेक्टर q है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर स्क्वायर रूट ऑफ i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट स्क्वायर -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और 4 का स्क्वायर अगेन 16, स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 29. नाउ q वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? i का कोएफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट 4 का स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट स्क्वायर, k है नहीं उधर, और ये है, k is equal to 0. So 2 square is 4 square is 16, root 20 is the magnitude of q vector and root 29 is the magnitude of p. Now we have the formula p dot q is equal to pq cos theta, a dot b equal to ab cos theta. So either p dot q equal to pq cos theta, cross multiply करके cos theta equal to p dot q upon pq. p dot q upon, first we found out the p dot q कैसे ढूंढेंगे? i का कोएफिशिएंट 3 है, 3 into 2 is 6, j का कोएफिशिएंट -2 है, -2 into 4 is -3, k का कोएफिशिएंट 4 है, इधर 4 है, इधर 0 है, 4 into 0 is 0, तो करने का जरूरत नहीं है। 3 into 2 6, 2 into 4 is -8 equals to -2 is the p dot q dot product. मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज स्केलर, -2 इज अ स्केलर। ये p डॉट q अपॉन किधर लिखा हम लोग? cos थीटा इक्वल टू p डॉट q अपॉन pq, p डॉट q इक्वल टू pq cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा cos थीटा इक्वल टू p डॉट q अपॉन pq, राइट? therefore from here
cos theta equal P dot Q मिला आपको -2, मैग्नीट्यूड ऑफ P हमको मिला √29, मैग्नीट्यूड ऑफ Q मिला अपने को √20, तो इसमें से थीटा मिलेगा। एकदम क्लियर? If you like this, press the like button, and if you want to subscribe, please subscribe. That's up to you. Right.